अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी विलेज लाइफ ऑफ गोलपारा चक बील फरीदपुर। अच्छा, हमने थोड़ा सा सर्च किया कि ये बील क्या है। हमें ये पता चला कि बांग्लादेश की लैंग्वेज के अंदर बील झील को कहा कहते हैं। जाता है और इंग्लिश में से लेक कहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और दूसरे नंबर पे ये वीडियो हमारे एक व्यूअर ने हमें रेकमेंड की और उन्होंने ईमेल हमें की, सो थैंक यू सो मच आपका। और हमारी वैसे भी कोशिश होती है कि जितने भी लिंक्स हमें ईमेल के अंदर आए हम उनको जरूर देखें। और सेकेंडली हमें काफी अरसे से आपने देखा था कि रिक्वेस्ट आई थी कि विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करें। अभी तो वो सारी चीजें देखनी है ना, तो हमने कोशिश की कि भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बील लाइफ किस तरह की होती है, कैसे लोग सरवाइव करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी लेक्स हम यहाँ पे देखते हैं और उनके इर्द गिर्द जिस तरह से विलेज होते हैं, लोग आबाद होते हैं, किस तरह से उनका लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन वहां पे लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं वो तो ये वीडियो देख के पता चलेगा। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अरे औरतें भी चला रही हैं। आप नहीं ड्राइविंग करते? हाँ, ये भी बात सही है। बोट चलाते हुए आज तक मर्दों को ही देखा है ना। पानी कितना साफ। ওই অদূরে মেঘের ভেলায় চেপে শ্যামল বনভূমির মাথা ছুঁয়ে অনন্ত যাত্রায় চলেছে অন্তরিক্ষ। ঝিরি বাতাসে আন্দোলিত এই কাকচক্ষু সরোবরের জলেও নিজেকে দেখতে প্রতিবিম্ব তুলেছে লাজহীন আকাশ। এই বিলের সাদা শাপলার মন মাতানো সুষমা যে কোনো সৌন্দর্য পিয়াসীর চোখে মুগ্ধতা ছড়ায় নিজস্ব গুণাবলিতে। তারার মতো ফুটে থাকা এই শাপলা সমস্ত জলাধারটিকে দিয়েছে এক অনন্য রূপশ্রী, যা পর্যটকদের মুগ্ধ করে চলেছে। ফরিদপুরের সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া চকের এই জলাশয় সাদা শাপলার বিল নামে স্থানীয়দের কাছে পরিচিত। টলটলে জল আর নানামুখী সম্পদে ভরা এই জলাশয় স্থানীয়দের কাছে এক উজ্জ্বল আশীর্বাদ স্বরূপ। বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত জুড়ে এর বুকে থাকে থই থই জল। তাতে বিরাজমান শাপলা, শালুক, কচুরিপানা, মাছসহ নানা উপাদান বিলিয়ে চলে সে উদার হস্তে। এছাড়াও নানাভাবে উপকারভোগী এ জনপদের বাসিন্দারা। মাছ ধরার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে এই চায়না দুয়ারি জালের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। चौड़ा आगे पीछे का जाता है। वो देखो मछली सारी निकाल रही है। সাধারণত ট্যাংরা, পুঁটি বা টাকি গুচির মতো ছোট মাছ আটকালেও
এতে রেণুপোনাও আটকে যায়, আটকায় অন্যান্য জলচর প্রাণীও। 3 से 4 तरह মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মা মাছও এই জালে আটকা পড়ে, যা মিঠা পানির দেশীয় মাছের বংশবিস্তারকে হুমকির মুখে ফেলে। জলজীবীদের এসব বিষয়ে তেমন ধারণা না থাকায় এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। अच्छा ये उन्होंने अपने फिक्स किए हुए हैं सारे। हाँ जी, ये देखो चेक कर रहा है। অনন্ত সময়কাল ধরে মাছের সাথে মানুষের বন্ধন, এসব জলাশয় সেই বন্ধন আরো দৃঢ় করে চলেছে প্রতিনিয়ত। ये देखो sir। वो देखो वो देखो देखो हाँ কেবল যাপিত জীবনের প্রয়োজনই নয়, পর্যটকদের কাছে পেতেও এই চকের রয়েছে দারুণ এক আকর্ষণ ক্ষমতা। ये देखो ये पूरा ছবির মতো set সুন্দর किया हुआ है। এই জলজ চরাচরকে ঘিরে মৎস্যজীবীদের দাপটটাই খানিকটা যেন বেশি। মাছ ধরার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ভেসাল জালের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। এই জালের মাধ্যমে একজন শিকারী খুব সহজেই মাছ আহরণ করতে পারেন। ये वो याद है एक हमने वीडियो देखी थी कि चाइनीज এলাকা ভেদেই জালকে বেয়াল জাল, বেল জাল, খেয়া জাল বা গভীর জাল নামে ডাকা হয়। ये इनका अपना तरीका। সাধারণত ত্রিভুজাকৃতির একটি লম্বা বাঁশের ফ্রেম জুড়ে জাল সংযুক্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে ছোট মাছ ধরতে এই জালের ব্যবহার হয়ে থাকে। देखो वो इकट्ठा कर रहा है। ऐसा होता। ধরা পড়া মাছ নেট জালের ঘেরে এভাবে রেখে দেয়া হয়, এতে দীর্ঘ সময় ধরে জীবন্ত থাকে মাছ। अच्छा कुछ और বাঙালির भी है। রসনায় দেশীয় নানা প্রজাতির মাছের বরাবরই অন্য রকমের এক আবেদন রয়েছে। वैसे ईल जैसी चीजें भी ভেসাল জালের থলিটি বেশ বড় সড় হয়। জালের সামনের প্রান্ত পানির গভীরে প্রবেশ করে মাছকে সেই থলিতে বন্দি করে। শরীরের ওজনের ভরে জাল ধীরে ধীরে উপরে উঠানো হয়। সে সময় জালে ঢুকে পড়া মাছগুলোকে জেলে দুহাতে জাল ঝাঁকিয়ে নিজের আয়ত্তে নেন সহজেই। बेसिकली वो लिवर के ऊपर खाए। हाँ जी। শাপলার মৌসুম প্রায় শেষ, তবুও বিলের বুক জুড়ে তার দাপুটে উপস্থিতির চিহ্ন রয়ে গেছে। चला भी रहा है और डायरेक्शंस भी दे रहा है, तो देखो आहिस्ता आहिस्ता वो আকাশের सामने নীলিমা तक যেন निकालता है उसको। আঁচল মেলেছে শান্ত এই বিলের জলে। সেথায় সবুজ পাতার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে শাপলা কন্যারা। ये वो वाटर दिखा करता होता है ना भैंस को। ডুব দিয়ে জলের তল থেকে মণিমাণিক্যের মতো তুলে আনা হচ্ছে শালুক। শাপলা গাছের গোড়ায় একাধিক গুটির জন্ম হয়, যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে শালুকে পরিণত হয়। সবজি হিসেবে এটি খাওয়া হয়। বেশ সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর এই শালুক। वो भी स्पेशल चीज है। नहीं नहीं कुछ और है। জনপ্রিয় এই ফল একটা সময় হাওর এলাকায় গরিবের খাবার হিসেবে পরিচিত ছিল, তবে এখন ধনীরাও শখ করে কেনেন এই ফল। এটি আগুনে পুড়িয়ে কিংবা সেদ্ধ করে খাওয়া যায়। ক্ষুধা নিবারণের পাশাপাশি শরীরে দ্রুত শক্তি যোগায় শালুক। लग तो आलू जैसे ही है ना। कितना Kingfish प्यारा लग रहा है। শালুকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম আছে। আছে ঔষধি গুণও। কেবল যে নিজেরা খাওয়ার জন্যই শালুক সংগ্রহ করা হয় তা নয়, দিনভর অনেকেই এই জলাশয়ে শালুক সংগ্রহ করেন বিক্রির উদ্দেশ্যে। স্থানীয় বাজারে বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয় শালুক। विटामिन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसके। বিলের জলে যেন আত্মসমর্পণ করেছে আকাশ। সূর্য সাঁতরে চলেছে সেই স্বচ্ছ জলে।
এই বিল অন্যদের পাশাপাশি নৌচালকদেরও কর্মসংস্থান করেছে বেশ যত্ন সহকারে। পচানো পাটের আঁশ ছাড়িয়ে বিলের বুকে কায়দা করে মাচান বানিয়ে পাটকাঠি শুকাতে দেওয়া হয়েছে। কায়দাটি যে বেশ কার্যকর তা এর পদ্ধতি দেখেই বলে দেয়া যায় অনায়াসে। কি নির্মল এই চরাচর, কি হৃদয়গ্রাহী। প্রবাদ আছে, ভাদ্র মাসের তাল না খেলে ছাড়ে না কাল। সবুজে আবৃত প্রকৃতির মাঝে বিলের জলে পা ভিজিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই তালগাছ আমাদের গ্রামীণ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য প্রতিচ্ছবি। এর বাকলে পুরো কার্বনের স্তর থাকে, যে কারণে তালগাছ বজ্রপাত নিরোধে সহায়তা করে। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই যে প্রকৃত সুখ, তা প্রকৃতিকে দেখেই উপলব্ধ হয়। কি নিবিড়ভাবে নিজের সমস্ত সম্পদ সুধা উজাড় করে চলেছে এই চক। যার যেমনটা প্রয়োজন ঠিক তেমন ভাবেই যেন নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত রেখেছে সে। দিন দিন যেমন মানুষ বাড়ছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে কমছে জলাশয়ের সংখ্যা। তার চেয়েও ভয়াবহ গতিতে কমে আসছে দেশি মাছের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ। এখন আর আগের মতো মাছ মেলে না খালে বিলে। এই বাক্যে যেন মিশে রয়েছে আপনজন হারানোর মতো বিরাট এক হাহাকার। সাধারণত চক শব্দটি গ্রামের বা এলাকার একটি বিশেষ অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে গোয়ালপাড়া গ্রামের এই নিম্নাঞ্চল বা বিলকেই চক হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। এ চকের ভাঁজ খোলা সৌন্দর্য যেন কোনো স্বপ্ন নিকেতনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা বিশেষ অমূল্য সম্পদ। নিজেকে অবমুক্ত করতে যেন কষ্ট ক্লিষ্ট সাধনা তার। দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির ভেতর দিয়ে এই যে সবুজে ছাওয়া লম্বা রেখা দেখা যায়, সেটি গোয়ালপাড়া গ্রাম। সবুজের ভিড়ে গ্রামখানি যেন সতেজ কোনো চিত্রপট। চক থেকে নৌকায় ভরে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে সবুজ তৃণলতা পাতা। বিভিন্ন প্রজাতির এসব ঘাসলতা গবাদি পশুর পছন্দের তালিকায় যে শীর্ষে রয়েছে, তা তাদের আগ্রহ দেখলেই বোঝা যায়। টাটকা সবুজ এই খাবার গৃহপালিত পশুর সবল স্বাস্থ্য রক্ষায় দারুণ কার্যকর। গরুর পাশাপাশি ছাগল পালনেও বেশ আগ্রহী গ্রামবাসী। বাঁশ টিনের তৈরি বিশেষ এই স্থানটি পেঁয়াজ সংরক্ষণের মডেল ঘর। এখানে প্রচুর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর বিশেষ কাঠামো পেঁয়াজকে পচন থেকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। সংরক্ষণকালে স্তরে স্তরে শুকনো পেঁয়াজের খোসা উঠে যেতে থাকে। হাটে তোলার আগে তাই ডলা দিয়ে আলগা খোসা ছাড়িয়ে নেন কৃষক। ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার তকতকে করে তবেই হাটে তোলা হয় ঝকঝকে পেঁয়াজ।
এতে দেখতে যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি দামও একটু ভালো পাওয়া যায়। দারুণ যত্নে সংরক্ষিত এই পাটকাঠি বর্তমানে একটি মূল্যবান রপ্তানি পণ্য। এ থেকে পাওয়া অ্যাক্টিভেটেড কার্বন পানি ফিল্টার, ওষুধ, প্রসাধনী এবং শিল্প খাতে ব্যবহৃত হয়। বাড়ির সামনেই থৈথুবানি জল ভরা বিল। বিলের এই জলে বেলা অবেলায় চলে পোষ্য হাঁসের জল কেলি, তেমনি চলে জল সংশ্লিষ্ট নিত্য কর্ম সম্পাদনের সকল আয়োজন। এই চক যেন গোয়ালপাড়াবাসীর জীবনে এক আশীর্বাদ। পুরনো পোশাককে সেলাই ফোঁড়াইয়ের মাধ্যমে কাঁথা হিসেবে পুনর্ব্যবহার করার এক আশ্চর্য শিল্পকলার চর্চা চোখে পড়ে গ্রাম বাংলার নারীদের মাঝে। এটি বাংলার 1 শতাব্দী প্রাচীন সূচিকর্ম শিল্প। জ্বালানি তৈরির জন্য কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটার এই প্রক্রিয়া কিন্তু সহজ নয়। শরীরে বয়সের ছাপ পড়লেও পরিপক্ক অভিজ্ঞতায় ছেদ পড়েনি মোটেও। ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ধীরে ধীরে আঁকা হচ্ছে যেন স্মৃতির আলপনা। মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে অমৃত স্বাদযুক্ত খাবার, যার ঘ্রাণে ঘুরে ফেরে হারানো দিনের গল্প। কেবল যে জাল দিয়ে মাছ শিকার হয় তা নয়, ছিপ বড়শিতে মাছ ধরার আবেদন বুঝি এক অন্যরকম আবহ ছড়িয়ে দেয় শিকারীদের মনে। নানা ধরনের টোপ ব্যবহার করে বিলের পার ঘেঁষে কচুরিপানার ফাঁক গলে চলে মাছ ধরার আয়োজন। বিলের দেশি কইয়ের স্বাদ যারা একবার পেয়েছেন তারা বারবার সেই স্বাদ পেতে চেয়েছেন। মাছ ধরা অনেকের কাছেই নেশার মতো। মানুষের শিকারী সত্তা এখানটায় বুঝি জেগে ওঠে নির্ভেজাল আদিম আকাঙ্ক্ষায়। সে কারণেই পেশাদার জেলের মতোই নেশাদার শিকারীরও অভাব নেই। গায়ের বুক চিরে বয়ে গেছে ইট বিছানো সরু গ্রামীণ পথ। এই পথেই সকলের নিত্য যাতায়াত। ফসল বোনার আগে জমি প্রস্তুত করে নেওয়া জরুরি, সেই কাজই চলছে এখানটায়। গায়ের একমাত্রই সড়কটি যেন বিলকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে। তারই দুপার জুড়ে খানিকটা উঁচু জমিতে ধানের ক্ষেত আর তালবিথির গলাগলি মিতালি। রোদেলা আভায় হেসে উঠেছে ক্ষেত ভরা আধা পাকা ধানের মাঠ। কার্তিকের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের শুরুতে এসব ধান কাটা শুরু হলে একসময় নবান্ন উৎসব হতো বাংলার ঘরে ঘরে। এখন আর সেই উৎসব তেমনটা চোখে পড়ে না। এই জলাভূমি বকসহ বিভিন্ন পাখির খাবার সংগ্রহের আদর্শ স্থান। সুউচ্চ তালগাছগুলো তাদের আবাসস্থল। এই নিসর্গ ভূমি যেন পটে আঁকা কোনো ছবি। প্রকৃতি যেন গোয়ালপাড়া গ্রামটিকে ঘিরে মেলে ধরেছে
তার সবুজ আঁচলের প্রান্ত, আর তাকে যেন অলঙ্কৃত করতে মুক্তময় দুটি ছড়িয়েছে বিলটি। কেবল সৌন্দর্যই নয়, এই বিলের পরতে পরতে লেখা রয়েছে ঘাম ঝরানো পরিশ্রমী মানুষের সংগ্রামের কথা। লেখা আছে সুখ দুঃখের অমেয় আখ্যান। अच्छा, ये एक ही आम है जिसकी हाँ। जगह कितने सारे गिने लिखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट अ वंडरफुल वीडियो, बहुत खूबसूरत। और आप ये देखेंगे हमें कितनी चीजें पता चलती हैं कि भाई नेचर आपके लिए क्या क्या चीजें करता है और लोग किस तरह से नेचर पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जितनी चीजें हम लोगों ने देखी वो सब कुछ इसी तरह से हमें दिखाया गया कि जितने भी विलेजेस इन बील्स के करीब होते हाँ हैं, जी। इन लेक्स के करीब होते हैं, वो सब के सब इन पे डिपेंड करते हमने हैं। बेसिकली बिल्कुल उनका डेली लाइफस्टाइल वहाँ पे देखे Yes. कि उनका सारा दिन गुजरता किस तरह से, क्या क्या वो काम बिल्कुल। करते और हैं वहाँ पे। इतनी स्ट्रगल है वहां पे, आपने ये खुद देखा है कि कितनी मेहनत से, अगर आप देखो ना खाली वो कश्ती पे ही जा रहे हैं, हाँ उन्होंने जी। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन नेट्स को चेक करना है, किस करना है, तरह से उन्होंने- उन्होंने फिश को कलेक्ट करना मतलब है, उनका उसको पूरा लेकर दिन आना है। उसी चीज वो के अंदर fishing गुजर के रहा है अंदर वहाँ निकल पे। जाता है। हाँ। बेसिकली हाँ बोलो। उसके अलावा आप देखें कि वो किस तरीके से ऐसे पानी के अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट तरह की ना सब्जियां टाइप की चीजें निकाल के ला आप रहे देखो थे। उसके अंदर अच्छा, वो उन्होंने क्या था वो तो हमें पता नहीं चला, वो आप जरूर हमें बताइएगा। लेकिन जितनी मेहनत दिखाई गई है, आप ये देखो कि उन्होंने डिफरेंट टाइम्स भी बता दिए हाँ जी। कि भाई जब रेनी सीजन होता है यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रिवर्स भी इनके साथ मिल जाते मिल हैं ना, जाते और फिर हैं, हाँ बारिशें हो रही हैं। सो फ्रेश वाटर लेक इसीलिए होती है कि भाई वहां पे जब पानी ऊपर नीचे होता है तो डिफरेंट तरह की स्पीशीज वहां पे आप आती देखिए हैं। अभी यहाँ पे इतनी वैरायटी थी फिश की, तो सोचे कि जब हाँ। रिवर अटैच होता होगा तब और बढ़ जाती बहुत होगी, ज्यादा कितना हो सारा गया, कुछ है। आता बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर वो जो फ्लावर दिखाया जा रहे थे, लिली। वो लिली, वाटर लिली। बहुत लिली नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा उसको लोटस कहते हैं, लोटस फ्लावर होता है। यार हम तो कवल का फूल कहते हैं, हाँ, अब जो कवल भी का उसको कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और फिर आप ये देखो कि मैंने आज पहली बार यहाँ पे देखा कि औरतें भी वही स्ट्रगल कर रही हैं, वो अपनी बोट्स को लेकर जा रही हैं, आ रही हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि मर्द और औरत में भी फर्क नहीं था, सब एक जैसी मेहनत करते हैं वहां पे, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इन पूरा व्हील से करते पूरा हैं। करते आप ये हैं। उनको देखें पूरा। खाली वो अपने लिए नहीं, अपने जो पेट्स हैं उनके लिए भी हाँ, सारा अपने वो जानवरों के लिए भी कर रहे हैं। और वेटलैंड्स में से लेके आप आ देखो रहे हैं। हर चीज वहां से, इवन वो प्याज भी वहां से वो कलेक्ट कर रहे हैं, करते उसके हैं, सारा हाँ। कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। वो अपने लिए लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट में देखे Handicraft, उनके हाँ, कपड़े हाँ, वगैरह बन बिल्कुल रहे इसी थे। तरह से। अच्छा, फिर उन्होंने दिखाया ना कि वो जो विलेज का पूरा एक सिस्टम था जी, कि जी। जहाँ पे घर बने हुए घर इतने बने अच्छे हुए अच्छे, थे। और फिर मॉडर्न उन्होंने वो जो एक स्टोर रूम दिखाया, हाँ जी, storage कितना room। खूबसूरत था ना। अच्छा, हर वो- चीज नेचर से जुड़ी आप हुई है। देखिए कि वो मॉडर्न चीज इसलिए क्योंकि पानी का जब फ्लो ऊपर नीचे होना है तो उनकी हाँ, स्टोरेज खराब ना हो, वो ऊपर रहे, बिल्कुल उसको इसी उन्होंने तरह किया। से। अच्छा, फिर वो आपको याद आ गया, मुझे तो भूल गया था कि वहां पे प्याज छोटे छोटे से होते हैं ना, हमारे यहाँ पे प्याज अच्छा बड़े साइज बड़े का size होता है, का और उसको किस तरह से वो साफ अच्छा, करके खाली ड्राई कलेक्ट करके लेके जा कलेक्ट रहे हैं। करना वो काम नहीं, उसके बाद आगे बहुत ज्यादा मेहनत है। आप उसको देखिए ड्राई उन्होंने करना, उसको उसको साफ सॉर्ट करना है, करना। उन्होंने उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके जाना है जी, आगे, हाँ बहुत जी, बड़ा बिल्कुल काम है वो। ऐसा ही है। अच्छा, वो बच्चे भी कितने प्यारे लग रहे थे ना, स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज मुझे मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि इस तरह की जगह पे भी उन्होंने स्कूल का हाँ, इंतजाम ये रखा बहुत हुआ है। अच्छी हाँ, चीज बहुत है। अच्छी बात है। अच्छा, फिर वो जब पानी उतर जाता है तो उन्होंने फिर ये भी बता दिया कि भाई राइस वगैरह और दूसरी तीसरी खेती हमने यहाँ देखा पे कि की उन्होंने जाती है। चावल हाँ, लगाया हुआ। तो मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बोरो बोरो राइस। राइस, हाँ, वहां पे लगाया जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी चीज नहीं थी, हमने पहली दफा खजूर के दरख्त देखे यहाँ पे। देखे ओह, हैं। खजूर yes, भी थी हाँ यहाँ जी। पे और बनाना ट्रीज भी अमूमन थे। हम कोकोनट ट्रीज वगैरह यहाँ पे दिखते हाँ, हैं ना इस हाँ, तरह की जगहों हाँ, के इसी ऊपर। तरह से। अच्छा, फिर जिंदगी बहुत टफ है वहां पे, ये तो हम लोगों ने देखा ना। मतलब नॉर्मल रूटीन के भी जो काम करने हैं वो आप इसी पानी के ऊपर डिपेंड करते हो। हमने वहां पे देखा कि औरतें कपड़े भी धो रही हैं, तो वो अपनी बोट के अंदर बैठ के या किनारे के ऊपर किस तरह से उस पानी को यूटिलाइज करके अपने कपड़े धो रही हैं। सो देखा जाए तो टोटली वहां पे जितनी भी उनकी हमें पूरी लाइफ लाइफ नजर आ रही है, एक एक तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, और हाँ दूसरा जी। इसी बील के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल है। ऐसे। सो अल्लाह की कुदरत है जी, और क्या कहा जा सकता है। और कितनी मेहनत ये लोग करते हैं वो आज हम लोगों ने देखा। अभी तो ये हमने एक वीडियो देखी और है आप ना, देखिए उनका उनको कुकिंग प्रोसेस देखा जरूरत हमने की फिर। सारी चीजें जो है वो उसी लेक के अंदर ही हाँ, है, सब बिल्कुल कुछ इसी उसी लेक तरह में से। है। और अगर थोड़ा सा आप लोग पिछली देखी हुई वीडियो के ऊपर गौर करो ना, तो हमें कुछ मार्केट का जब विजिट हुआ, कुछ व्लॉग्स हमने इस तरह से देखे, तो उनके अंदर हमें वहां पे ड्राई फिश भी नजर आई थी। ड्राई फिश हाँ, अब आप अगर नोटिस करो तो ये वही साइज की डिफरेंट डिफरेंट फिश है जो
यहाँ पे हमें नजर आ रही है। सो ये इनके खाने के भी काम आ रही हैं और ये उसको बेच के बिजनेस भी कर रहे हैं। इसी तरह से इनका एक लाइफ चल रही है, इनका साइकिल चल रहा है। सो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत मजा आया और एक सुकून भी मिलता है नेचर को देख के ना। हम लोगों ने कुछ नया जाना है, हमारे नॉलेज में आप देखिए जो वो ग्रीनरी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। वो पानी जो होता है वो इस कदर साफ है कि आपको नीचे बेस तक नजर आ रहा है। शहर के अफरा तफरी से बिल्कुल दूर होता है ना, इस वजह से आपको वो एक सुकून देख के भी फील होता है। और फिर ये जैदू ने भी मुझे बोला ना कि आप नोटिस करें तो आपको पूरे रूट्स नजर आएंगे इस पानी के अंदर ना। और वंडरफुल वीडियो, बहुत मजा आया। आपने बताना आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।